Hello and good evening, everyone. Welcome to another episode of Behind the Mic at Roshni. My name is Amal, and today we will be having Mr. Saad Masood with us. For introduction, Sir Saad is an educationist and an advocate at High Court. He holds an LLB honour from the University of London and an LLM from the University of Nottingham. Specializing in oil, gas, mining, and environmental laws, he works with several schools as part of their adjacent faculty, providing advisory services to various firms on contractual matters. Hello, sir. How are you? I'm good, thank you. Assalamu alaikum. Thank you for having me. Today I have my highly talented fellow analysts Abdul Rahman and Yunus with me as well. Can you guys please introduce yourselves? Assalamu alaikum everyone. I'm Abdurrahman. I'm an analyst at Roshni and I'm very excited to be here. Yes, Asad. Ladies and gentlemen, good evening. I am Yunus Sadat, an analyst at Roshni and one of your hosts for today's episode of Behind the Mic. Thank you. Sir Saad, as you know, the government has made tactic efforts to bring what is said the judicial reforms in the country's wider interest. The Constitution 26th Amendment Act of 2024, also known as the Constitutional Package, was introduced on 21st of October 2024. Can you provide us with an overview of the amendment and how it speculated the dynamics of Pakistan's judicial system? Thank you. Assalamu alaikum once again. Bilkul, the 26th Amendment was brought in force in October of last year, 2024. Now, there are a lot of there's a whole package of changes that the Constitution Amendment has brought with it. I'd like to start with the very small ones just for, educational purposes. For example, uska jo Article 9A है वो एक clean healthy environment की बात करता है. Also, we are aiming to eliminate riba from Pakistan by the end of 2028. So these are also things that have been attached to this constitutional amendment. Now, the biggest change that was brought forth by the constitutional amendment was basically Article 175A. ठीक है. और इसी आर्टिकल ने सबसे ज्यादा आप कह लो डिबेट जनरेट की है, क्योंकि द एंटायर कॉन्सेप्ट of a state is based on three organs, which is the legislature, the parliament, the judiciary and the executive. Separation of powers की एक फिलॉसफी के ऊपर ये काम करते हैं और वो यही कहते हैं कि इन तीनों को अलहदा होना चाहिए और ये ओवरलैप ना करें. हल्की फुल्की ओवरलैप हो जाती है फॉर अ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट. दिस जस्ट अ बैकग्राउंड आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए. जो चेंज आया है मेन, जिस like I said that has generated debate, is the appointment of the higher judiciary. ठीक है. और उसके प्रोसेस के ऊपर हुआ है. Now the higher judiciary is what in Pakistan? Obviously the Supreme Court and the High Court. इसको भी अगर आप थोड़ा और नैरो कर लो तो द सुप्रीम कोर्ट और के चीफ जस्टिस की जो अपॉइंटमेंट है वो कब और कैसे होनी है. नाउ दैट हैज generated a lot of debate and let me just summarize that for you. होता ये था पहले कि जो आपका चीफ जस्टिस है पाकिस्तान का, that used to be the senior most judge. I am making these gestures क्योंकि ये स्टैट्यूट की लैंग्वेज मैं आप लोगों को खुद बता रहा हूं. अब ये हुआ है आफ्टर दिस अमेंडमेंट कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है ऑफ पाकिस्तान, इसकी जो अपॉइंटमेंट है उसके अंदर जो पार्लियामेंट है उसका डायरेक्ट से होगा. द पार्लियामेंट डायरेक्ट उसका एक से होगा इसमें कि कौन चीफ जस्टिस आपका बनता है और कैसे बनता है. नाउ हाउ इज दैट, लेट मी एक्सप्लेन. उसमें यह है कि एक कमिटी बनाई जाएगी ऑफ 12 मेंबर्स, ठीक है, जिसमें से 8 मेंबर नेशनल असेंबली के हैं और 4 मेंबर्स सेनेट के हैं. यानी कि जो रूलिंग पार्टी है, जो बेसिकली पार्लियामेंट, जिसको मजलिस शूरा कहते हैं उर्दू में, वहां पे बैठ के जो लॉज बनाते हैं और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमने ही उनको वोट दिया है वहां के लिए, वो अब आके दे आर गोइंग टू अपॉइंट द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान. ठीक है. इसके ऊपर अभी हम मजीद बात करेंगे, बट आई जस्ट वांट टू काइंड ऑफ ब्रेक इट डाउन फॉर यू फर्स्ट.
वो कमिटी क्या करती है कि वो पहले तो होता था ना कि जी सीनियर मोस्ट जज को हम चीफ जस्टिस बनाएंगे। ये डिबेट कुछ साल पहले भी आई थी व्हेन मिस आयशा मलिक वाज अपॉइंटेड द वन ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि जी मेरिट पे है, सीनियरिटी पे है। तो पहले ये होता था कि सीनियर मोस्ट जज बन जाता था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब ये होता है कि ये जो कमेटी है ये सिलेक्ट करेगी 3 सीनियर मोस्ट कैंडिडेट्स को, 3 को। इन 3 को जब शॉर्टलिस्ट करके इन्होंने कर लिया सिलेक्ट, उसके बाद ये कमेटी एक बंदे को चूज करती है, इन तीनों में से एक को सिलेक्ट करेगी। उसका नाम ये लोग दे देंगे प्राइम मिनिस्टर को, जो हमारे मुल्क का उस वक्त एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर होगा। और वो जो है उस रिकमेंडेशन को फॉरवर्ड कर देता है टू द प्रेसिडेंट, एंड देन अ चीफ जस्टिस, अ न्यू चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड फॉर पाकिस्तान। और जो प्राइम मिनिस्टर की जो रिकमेंडेशन है, विच इज ऑब्वियसली कमिंग थ्रू द कमिटी, वो चैलेंज नहीं हो सकती अंडर दिस न्यू अमेंडमेंट। ये भी एक इसके अंदर है। नाउ इट्स आर्ग्यूबल, और क्योंकि अभी तक जाहिर है इसके ऊपर कोई इट्स नॉट कम इनटू प्रैक्टिकलिटी एज येट, अभी हमने इसके ऊपर कोई एज सच काम नहीं देखा, अभी अभी तो जाहिर है आई है, वक्त लगता है इन चीजों को। इट्स आर्ग्यूबल कि इट्स मेड द प्रोसेस मोर ट्रांसपेरेंट। It's arguable that it's considering a wider range of candidates to become the next Chief Justice of Pakistan. फिर इसने क्या किया है अमेंडमेंट ने कि इट्स टेकन अवे द सुओ मोटो पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो कि हम अमूमन सुनते रहते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले, सुओ मोटो ले। वो पावर्स इन लोगों ने ले ली हैं। दिस इज आर्टिकल 184। ठीक है। और उसके अलावा इन्होंने फिर ये भी किया है कि एक प्रपोजल था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलहदा से एक बना दिया जाए, एक अलहदा से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दिया जाए। लेकिन चूंकि उसको वो मेजॉरिटी नहीं मिली वोट्स की इस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए, तो फिर द रूलिंग पार्टीज एंड द ऑपोजिशन दे गॉट टुगेदर, और उन लोगों ने फिर क्या किया कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जिसको जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बनाएगा और उसको सुपरवाइज करेगा। ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो टर्म है वो इन लोगों ने अब उसको क्या कहना चाहिए, ब्रैकेट कर दिया है टू 3 years। और उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जी जब ये 65 years के हो जाएंगे तो इनको रिटायर करना पड़ेगा। जाहिर है उससे पहले ही कैन ऑल्सो रिजाइन इफ ही विशेस टू रिजाइन, या अगर कोई वजह से उनको रिमूव करना पड़ जाता है तो। ये आप देखें, इसका एक मेन क्रक्स है जो हमारी पॉडकास्ट का आज ये बनता है टॉपिक। वैसे तो चेंजेस इसमें और भी बहुत ज़्यादा आए हैं, फेडरल शरीयत कोर्ट्स के लिए भी आए हैं, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स के लिए भी आए हैं। लेकिन दिस इज लाइक द मेन चीज जो है, जो हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से विड्रॉ कर रहे हैं, जो हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो यही है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ये पहले नहीं ऐसे होता था कि पार्लियामेंट का इसमें कोई से नहीं होता था कि हु इज गोइंग टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। भाई जाहिर है, आपको जिस तरह मैंने शुरू में एक चीज समझाई कि कॉन्सेप्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स का क्या है, ये 3 हमारे ऑर्गन्स हैं, ये तीनों एक दूसरे से अलग हैं। दे हैव टू वर्क इन हार्मनी, इन टैंडम फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द स्टेट। श्योर, ओवरलैप नहीं आ सकता, मैं आपका काम नहीं कर सकता, आप मेरा काम नहीं कर सकते। इट्स लाइक दैट। ठीक हो गया। आई वॉन्ट टू गो बैक टू द सुओ मोटो वाली थिंग जो मैंने आपको भी बताई है, बिकॉज वो सुओ मोटो पावर्स उन लोगों ने ले ली है ना, उन्होंने उसको आप कह लो, इन दिस इज माई ओपिनियन, दिस इज माई ओपिनियन, आई कुड बी रॉन्ग ऑब्वियसली, जब ये इन प्रैक्टिस आएगा हमें तभी पता चलेगा, बट दिस इज माई ओपिनियन। इन्होंने उस चीज को काउंटर करने के लिए मे बी, और टू जस्ट टू एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट अ बिट मोर, उन लोगों ने आर्टिकल 186A में
ये सुप्रीम कोर्ट को पावर दे दी है कि वो खुद नोटिस ले सकता है ऑफ केसेस इन द हाई कोर्ट, और जो उनको लगता है कि जो ज्यादा एक्सपीडियंटली वो इसको खुद लेके आगे चल सकते हैं, तो वो वाले केसेस अपने आप को वो खुद ट्रांसफर कर लेगा सुप्रीम कोर्ट. So that, it's kind of like, yeah, they are still exercising their powers and taking notice of cases and whatnot. But जो एक by and large जो एक पावर थी सुओ मोटो की, वो अब ले ली गई है सुप्रीम कोर्ट से. एंड वन ऑफ द गुड थिंग्स जो इस अमेंडमेंट ने हमें दी है, अगेन माय ओपिनियन, आई बिलीव कि ये बहुत अच्छी चीज है कि जो जुडिशरी है हायर लेवल की, जिसमें हमारा ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, फिर हाई कोर्ट आ जाता है, यही दो बड़े कोर्ट्स हैं ना हमारे, जहाँ के डिसीजंस जो हैं, वी वुड ऑल वांट इन आवर फेवर्स कि यार हाई कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया. तो जजेस का एक रिव्यू होया करेगा, रेगुलर रिव्यू होया करेगा कि कौन सा जज क्या कर रहा है, कौन से बेंच पे क्या हो रहा है. एंड आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग. So, depends on what side of the fence you're sitting on regarding कि इस amendment के क्या ramifications हैं या होंगे, and again time will tell. So this is basically the crux, एक मैंने आपको उसकी summary दे दी है about this new constitutional amendment. Sir Saad, I have a question. Considering the apparent backlash that the Please amendment go has ahead. faced, all right. Yeah, go on. All right. So, considering the apparent backlash that it has faced in the political context, do you think that it was a right time to introduce this amendment? That is an interesting question. And I'll say a few things over here. देखो, गवर्नमेंट जो एक्टिंग गवर्नमेंट है ना, किसी भी वक्त की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द करंट, किसी भी वक्त की, हमारे मुल्क में जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कभी भी हुई है ना, इट हैज ऑलवेज फेस्ड criticisms, it has always faced backlashes, क्या कहते हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस के ऊपर बहुत बोलते हैं, लीगल एक्सपर्ट्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ. Your question is interesting because I think it has more to do, it's more of a political strategy ka question than it is a legal question. Dekho, in my opinion, I can't really say if this was the right time or not, क्योंकि इसने क्रिटिसाइज होना ही था. ये आज होता, कल होता, टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर टर्म होता, ये क्रिटिसिज्म इनको मिलना ही था. ये जो मर्जी करता, इट्स नॉट एनी वन गवर्नमेंट, ये जो मर्जी कोई करता. In my view, I'd say कि जिस तरह the common man, you, me, anybody else, we could say कि नहीं यार, होना ये चाहिए था कि they could have sort of इसको थोड़ी देर रोक लेते, ये they could have allowed things to settle down a bit more, इकोनॉमी के ऊपर जरा ज्यादा बात पहले हो जाती, कोई इस तरह के रिफॉर्म्स पहले आ जाते, उसके बाद हम लोग ये चीजें देख लेते. But I'm sure the government had some good reason for introducing this constitutional amendment, क्योंकि देखो, it's too early to pass any sort of judgment. ये ठीक है, ये गलत है, was it the right move, was it not the right move? This is all speculative at the moment. ठीक है, देखो, किसी भी मुल्क की जो गवर्नमेंट होती है ना, वो बेचारी वैसे ही हैंडीकैप्ड होती है, क्योंकि दे टेक वन स्टेप, दे उनके सामने तो पूरा एक उनका टर्म है 5 years का, जितने भी सालों का, the country as a whole उनके सामने है ना. दे आर ऑब्वियसली बिल्डिंग अप टू देयर गोल, जो अपने मैनिफेस्टो में वो प्रॉमिस करके आए थे कि जी आप हमें वोट दें और हम ये लेके आएंगे मुल्क में, ये लेके आएंगे, स्टफ लाइक दैट. इट्स टू अर्ली टू से कि वाज इट द राइट मूव और नॉट, क्योंकि लाइक आई सेड, अभी इसके ऊपर कोई देयर हैजंट बीन एनी डेवलपमेंट फर्दर. बस वो अमेंडमेंट आई है और दैट्स प्रीटी मच इट.
अभी इसके ऊपर कोई ऐसा सच हुआ नहीं है। बैकलैश तो देखो इनको मिलना ही मिलना था। ये आज करते कल करते एंड पे करते। असल में इनका थोड़ा सा इसमें पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव हम लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि वी ऑल नो कि इस वक्त रूलिंग पार्टीज इज अ बेसिकली कोalition ऑफ पीपल फ्रॉम PMLN एंड PPP, ठीक है ना। नाउ इन दोनों पार्टीज के अनफॉर्चुनेटली जुडिशरी के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज रहे में हैं in the past where they have, and in some respects rightly so, rightly so, being absolutely neutral over here, इनके grievances अपनी जगह सच्चे हैं with the judiciary, सही है। So maybe they thought, again in my opinion, in a very uneducated common man opinion, I would say they probably thought this is the right time to go for it. And in their wisdom, I'm pretty sure they must have thought of something that must have crossed their minds when they were making this constitutional amendment. So that's what I'll say. Sir, I love how you approached that question. Really thought-provoking. So now I will move on to the next question. Thank you. How do you think this amendment would affect young lawyers who have just started or who want to start practicing? Sir, did you got the question? Yeah, I got the question. You just broke off towards the end, but I got the question. So I'll just repeat it अपनी clarity के लिए कि Okay. आपके ख्याल में ये जो 26th amendment है वो young lawyers जो अब field में enter कर रहे हैं उनको affect कैसे कर रही है? Is that right? That's the question, right? Yes, sir. Yeah, okay. Young lawyers को वो number one तो इस तरह affect कर रही है कि उनको पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ेगी अब। So number one, just to get a grip of the legal profession, तो हम तो अच्छे वक्त पे वकील बन गए थे, लेकिन बेचारों को अब ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। Anyway, so young lawyers को देखो, हमारी फील्ड में ये बहुत चीज रैम्पेंट है कि when you reach a certain practice का criteria and experience and age, तो by the way, this new amendment has also reduced the age of high court के जो judges हैं from 40 to 45 years, but just an additional point. Anyway, तो हर वकील की एक ये ख्वाहिश at some point आती है कि यार हम कल को हाई कोर्ट का जज बने या ना बने, या बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते। So young lawyers को ये चीज 26th amendment इसलिए अफेक्ट करती है because for those who harbor an interest in becoming judges in the future, there are some students जो कि from day one they know, aim होता है उनका कि जी मैंने हाई कोर्ट का जज बन के ही रहना है। तो फिर जाहिर है आपको इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जो क्राइटेरिया है फॉर हाई कोर्ट जजेस एंड देन इवेंचुअली द सुप्रीम कोर्ट, फिर आपको जाहिर है आप उसके ऊपर आपको पूरा उतरना पड़ेगा। नंबर वन। नंबर टू, क्योंकि I keep going back to जो मैं आपके एक पैनलिस्ट को अभी इससे पहले मैं जवाब दे रहा था, चूंकि अभी इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, अभी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, कुछ अभी हुआ नहीं है, तो यंग लॉयर्स जो हैं कल को जब इस तरह की कोई चीज व्हेन दे सी इट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एक चीज तो किताबी है ना, ये तो किताब से पढ़ के मैंने आपको सुना दी कि जी ये अमेंडमेंट ऐसे है वैसे है। उससे ये होता है कि एट टाइम्स आपका जो लीगल प्रोफेशन है ना वो थोड़ी देर के लिए शेक कर जाता है, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आ जाती है, ठीक है ना। अमूमन हड़तालें भी हो जाती हैं, उससे केसेस डिले हो जाते हैं, आपके क्लाइंट्स खुश नहीं होते आपसे, पीपल स्टॉप ट्रस्टिंग लॉयर्स। नाउ हम जैसे जो वकील हैं वो इस चीज को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं बिकॉज वी बीन इट फॉर अ व्हाइल। अब जो नया बच्चा आ रहा है ना वो कहेगा यार ये क्या है, कि मैंने तो किताब में पढ़ा था कि जी लॉ तो यूं है और ऐसे होता है,
इस तरह की चीज। तो यंग लॉयर्स के लिए ये एक चैलेंज है कि आपने उस चीज को रेकनसाइल कैसे करना है। वो बेचारे ऑलरेडी जब नए नए आते हैं वो लॉ को सीख रहे होते हैं। लॉ कोई आसान चीज नहीं है सीखने के लिए, ठीक है ना। ये भी डॉक्टर्स जो बनते हैं उनकी तरह ये कंटिन्यूअस स्टडी है। दे हैव टू रेकनसाइल कि यार अच्छा नहीं, ऐसे होता है वैसे होता है। उनको कॉन्स्टिट्यूशन समझना पड़ता है। जो मैंने पढ़ाई की बात की थी वो तो एक जरा लाइट हार्टेड बात हमने की है, लेकिन ये जरूरी है। उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पढ़नी पड़ती हैं, उनको उनको रेकनसाइल करना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है। दैट्स एन एडिशनल बर्डन, क्योंकि आप कल को अपने क्लाइंट्स को कैसे आगे जवाब देंगे जब आपकी खुद की तैयारी पूरी नहीं होगी। हाँ, जुडिशरी में जाना चाहते हैं फिर उनको इस पूरे क्राइटेरिया पे पूरा उतरना पड़ेगा, एंड देन इट्स योर लक। सो ये एक उनका एडिशनल चैलेंज फॉर श्योर है नए लॉयर्स का। Thank you so much for your valuable insights, Sir Saad, on this question. We will take a 5 minutes break now, and we'll be back in 5 minutes. Thank you. Yeah, got the message. Thanks. Okay, welcome back, everyone. We are back with our 5 minutes break. Iman, do you have something to say? Yeah, I do have something to say. So basically, I've recently received the news that Justin Trudeau has resigned from the prime ministership in Canada. So I would like to ask Sir Saad, what are your thoughts on this? Interesting question. I think I'm not too familiar with Canadian politics, but I'm familiar enough to tell you that I think it was time that he did gracefully resign. I think it's time, क्योंकि उसके ऊपर सबसे ज्यादा जो प्रेशर है is from Pierre Poilievre. I hope I'm pronouncing the name right. तो Pierre Poilievre का बहुत ज्यादा उसके ऊपर वो प्रेशर है, and by the way, thank you for informing me as well, because I knew कि वो हो रहा था कुछ, लेकिन I didn't know that he had actually resigned. So thanks for the info. In recently Canada के अंदर ये बहुत ज़्यादा reforms की बात हो रही है, starting with immigration. And it doesn't bode well for people like you and me who would like to maybe one day immigrate to Canada, या क्योंकि उनकी इकोनॉमी अब हो रही है चोक, राइट? और एटलीस्ट दैट्स द इम्प्रेशन दैट वी आर गेटिंग। ऑब्वियसली हम लोग इधर बैठ के एक थोड़ा सा स्पेकुलेट ही कर सकते हैं, बट देव रिसेंटली ट्रूडो की एक्चुअली जो गवर्नमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा ये टैक्सेशन, कार्बन टैक्स, ग्रोसरीज महंगी हो रही हैं, एवरीडे लिविंग महंगी हो रही है। उसकी इमिग्रेशन पॉलिसीज को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया है। ऑब्वियसली एंडोर्समेंट्स भी होती हैं, लेकिन so now that you've told me he's resigned, it actually doesn't come as much of a surprise to me. क्योंकि Canada was aching to go through this radical change, और ट्रूडो इसका एक्चुअली डाउनफॉल थोड़ा सा ना सैड है ट्रूडो का, थोड़ा सा इन द सेंस के he was probably कि जी बड़ा, he was very popular amongst Canadians and people outside Canada as well. Oh, look at this young stud who's now become the prime minister, but all of a sudden it's just kind of watered down. So my thoughts are, I think it was time before he was, well, pushed out. I think it's अच्छा हुआ है कि उसने gracefully खुद resign कर दिया, and he's left. And we'll see, maybe Pierre Poilievre would prove to be a better leader for Canada. We can't say. But Trudeau had his moments, yeah. He did have his moments. It's just that things do come to an end eventually. So yeah, I think it's good that he's gracefully resigned. Yeah, those are my 2 cents on it. We just received this breaking news right now during our 5 minutes break, so we thought it was a good idea to bring it up in the podcast. We'll be moving back to the main questions now. The core principle of the rule of law and the separation of power emphasizes that the citizens and their elected representatives should actively participate in legislative processes, leading to the adoption and enactment of laws.
In this case, however, the principle seems to have been compromised. In your opinion, could this lead to a bias between political powers and the judiciary? Furthermore, could this backfire on the Pakistan Muslim League Nawaz government if they transition into the opposition? And they're transitioning to opposition. Let me address the second part of the question first. You know what? I don't think so, no. I'm talking about the second part. कि ये उस पे backfire कर सकता है कि नहीं कर सकता. In my opinion, no. And I'll tell you why. क्योंकि look, ये सिर्फ judicial reforms की बात कर रहे हैं. इन दिस सेंस कि जी आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को किस तरह अपॉइंट करना है, पार्लियामेंट उसके अंदर एब्सोल्यूट से रखता है, ये होता है वो होता है, ठीक है, जो अभी हमने इससे पहले सारी बातें की हैं. व्हाई आई डोंट सी इट एज यू पुट इट बैकफायरिंग इज बिकॉज के जो नई गवर्नमेंट आएगी जब भी आती है तो दे आर बाउंड बाय द सेम प्रिंसिपल्स. उसमें आई मीन अमेंडमेंट तो ये, हाँ, नई कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आए, वी कांट से. सो आई डोंट रियली सी इट बैकफायरिंग. हाँ, यू रियली वांट टू काइंड ऑफ स्ट्रेच इट, तो हम ये फिर इसके अंदर एक पॉइंट जरूर ऐड कर सकते हैं कि मे बी इट कुड स्पेल, इट कुड बैकफायर ऑन देम, कि अगर अ न्यू पार्टी assumes the reins of Pakistan, they have now the power to appoint the Chief Justice of Pakistan. They do it, and उसके बाद क्या होगा कि जी जो हमारे यहाँ पे अमूमन ये एक ज़रा मिसअंडरस्टूड सा ये एक वो जुमला है, लेकिन हमारे यहाँ पे ये चीज़ें थ्रो अराउंड बहुत की जाती हैं कि जी वो उसने अपनी मर्जी का फैसला सुना दिया और वो उसके खिलाफ हो, ये हो ना हो, इस तरह की सारी बातें. बट दैट इज अ लॉन्ग शॉट. इन दिस अगेन माय ओपिनियन, दैट इज अ लॉन्ग शॉट, क्योंकि आप देखें ना कि उन्होंने ये प्रोसेस इंट्रोड्यूस ही करवाया गया है फॉर मोर ट्रांसपेरेंसी. दैट्स वन साइड ऑफ द कॉइन. ज्यादा कैंडिडेट्स को कंसिडर किया जा रहा है कि आपने किसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाना है. असल में हम लोग ऑब्वियसली वी ऑलवेज फोकस ऑन, आई बिलीव कि हम लोग ना जरा नेगेटिविटी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं. यू नेवर नो यार. आई मीन दिस कुड प्रूव टू बी अ वेरी गुड मूव एज वेल. श्योर, क्रिटिसिज्म बहुत आया. अब्दुल रहमान ने मुझसे पहले भी इस बारे में बात की है. यूएनएचसीआर ने इसके ऊपर बहुत बोला है कि यार दिस इज एज दे से कि जी ये डेमोक्रेसी पे अटैक है और ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है. देखो, हर मुल्क के डायनामिक्स फर्क हैं, ठीक है ना. ये जो है हमारा अपना पाकिस्तान का है, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, देव सेड के यार इट गोज अगेंस्ट अगेन, जो अब्दुल रहमान ने मुझसे बात की थी स्टार्ट में, कि इट गोज अगेंस्ट द वेरी कोर प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स. यूके में लॉर्ड चांसलर के ऑफिस की पावर्स क्यों कम की गई हैं? वो इसीलिए कम की गई थी कि वो सेपरेशन ऑफ पावर्स के उसको ब्रीच कर रहा था. भाई वो हाईएस्ट जज भी था, वो पार्लियामेंटेरियन भी था, वो एग्जीक्यूटिव का भी मेंबर था. भाई ये कौन सी सेपरेशन ऑफ पावर्स है? इसीलिए उसकी पावर्स को कम किया गया है ना. सो इन माय ओपिनियन आई डोंट थिंक, हाँ, इफ यू स्ट्रेच इट कि जी वो अपनी मर्जी का जज है, ऐसे है वैसे है, कांट से. It's very speculative. Hypothesis है. But I mean, on paper, no, I don't see it backfiring. Now, coming to the first part of the question, can you just repeat that so that I know I can address it properly? The first part was, could it lead to a bias between political powers in the judiciary? It could. Um, it could, because we forget the fact that even judges are humans, yaar. We forget this fact, and we ignore it at times. हम लोग नहीं इस बात को समझ पाते. Look, everybody has a right to be inclined towards one political party.
दैट्स द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है. आई कैन सपोर्ट वन, यू कैन सपोर्ट वन. However, I would like to add to my answer. I said it could. I stand by it. But let me add something to my answer. और वो ये है, even if it does, एक जज, और वो भी जब एक सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, मैं तो चीफ जस्टिस तो हाईएस्ट है ना, मैं तो एक बात कर रहा हूं कि जी आप सुप्रीम कोर्ट के एक जज हो, यूर अपॉइंटेड टू द पैनल. लुक, एक जज व्हेन ही टेक्स द ओथ कि यार नहीं, आज से आई एम गोइंग टू बी अ सुप्रीम कोर्ट जज, by it, the very virtue of the oath and by virtue of the office जो वो बंदा assume कर रहा है, वो चीफ जस्टिस भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, just be a judge of the Supreme Court. You take an oath to be unbiased. You take an oath to be transparent, free from any political, external pressure, away from all of this. So it could, but my answer is it should not. ये इस बात पे we all need to, we need to understand एक foundational principle है. As a lawyer भी आपका यही principle होता है. ये जो हम इधर उधर ये जो phrases throw around किए जाते हैं, इनका meaning है stand with what's right, justice. इनका meaning है इन phrases का. It's meant to be implemented. So I can understand कि जो internal workings हैं और इस तरह से, obviously, like I said, we're all human. Space है उस चीज के लिए होने के लिए. It could very well happen. ठीक है ना? And that ties in with your second question कि sir, could it backfire? तो फिर उस situation में the answer is yes. ठीक है ना? Situational है, circumstantial है. But I add to my answer and I say, it could. I don't see it happening. It could, but it should not. So that's my answer to your question. And that's actually a good question as well. Okay, that's a very unique perspective of it, and to an extent, I do agree with you. Moving on to the next question. The 26th Constitutional Amendment makes significant institutional changes in the structure and functioning of Pakistan judicial system, particularly concerning the Supreme Court and the High Courts. These changes bring an extraordinary level of political influence over the process of judicial appointments and the judiciary's administration. In your opinion, how does the 26th Amendment impact the career landscape for new lawyers in Pakistan? And what opportunities or challenges does it present to those entering the legal profession? I think we covered this question well to a great extent abhi, before the break, when I was asked ke young lawyers इससे किस तरह affect हो रहे हैं और उनके लिए क्या challenges आते हैं. So my answer would, for the most part, stay the same. Academically, तो हम इस पे बात कर लेंगे और young lawyers को करनी पड़ेगी. Because let me tell you, when I said कि यार उन लोगों को पढ़ना ज्यादा पड़ेगा और ऐसे होएगा, let me tell you something. This could very well be one of the questions you are asked at a job interview. LLB कर लिया? जी सर कर लिया. अच्छा चलें आए, हमें बताएं आपका इसके बारे में क्या राय है. हम वो लॉ फर्म हैं जो काम ही कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर करते हैं. ये तो पूरी फर्म कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर से भरी हुई है. What's your opinion on this? अब आप डिग्री लेके आ गए हो, गोल्ड मेडल आपने पहना हुआ है, बट यूर लाइक सर मुझे नहीं पता, मैंने इस पे पढ़ाई नहीं की हुई. समझ रहे हो? यंग लॉयर्स के लिए, अच्छा डायरेक्ट अगर आप कहते हो ना कोई इंपैक्ट है कि जी यंग लॉयर्स 26th अमेंडमेंट से डायरेक्टली किस तरह इंपैक्ट हो रहे हैं, वो नहीं हो रहे, वो कतन नहीं हो रहे.
बेचारे जो यंग लॉयर्स हैं ना, दे हैव इनफ चैलेंजेस टू बिगिन विद. सो 26th अमेंडमेंट जो है ना, वो पर्टिकुलरली यंग लॉयर्स को उनकी डे वन प्रैक्टिस से उनको एज सच इफेक्ट नहीं करती. ठीक है. सो लाइक आई सेड, आप अनलेस काम ही किसी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्म में कर रहे हो तो फिर बेटा, फिर तो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा. देन यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इट. और सिंस अभी इसके ऊपर कोई काम हुआ नहीं है, कोई एक्शन हुआ नहीं है, तो इट्स स्पेकुलेटिव एट बेस्ट. यंग लॉयर्स को डायरेक्ट इंपैक्ट 26th अमेंडमेंट का एज सच कोई नहीं है. दे हैव टू गो अबाउट देयर प्रैक्टिस एज दे डू. सुबह कोर्ट जाना है, सिविल कोर्ट में हेयरिंग है, कचहरी में हेयरिंग है, सेशन कोर्ट में हेयरिंग है. ठीक है ना. वैसे तो हाई कोर्ट के वकील भी यंग ही होते हैं, लेकिन आई थिंक यू आर रिफरिंग टू फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स. सो एवरीडे वर्किंग पे नहीं है. लॉयर्स के लिए एज सच बिल्कुल भी नहीं है. इट्स मोर टू डू विद द इम्पैक्ट ऑन द जुडिशरी. So, although interestingly, you may have seen a rise in Islamic banking recently. अब ज़्यादातर banks Islamic banking की तरफ move कर रहे हैं. And this new amendment has categorically pointed out कि जी हम लोग रिबा फ्री होना चाह रहे हैं 2028 तक. मतलब in the sense कि हो जाएंगे. हाँ, so if you're a banking lawyer, young lawyers अमूमन बैंकिंग केसेस करते हैं. I did them when I started out. It's a good way to get your feet on the ground, in the legal field. So maybe that's something they will have to educate themselves on and further tell their clients, क्योंकि बैंकिंग बहुत ज्यादा केसेस लगे होते हैं कोर्ट्स के अंदर. बैंकिंग कोर्ट्स अलहदा से बनी हुई हैं. Just for your general info. I And have a follow-up question regarding that. I have a follow-up question. कि would it कि ये काम हमें जो यंग लॉयर्स आएंगे उनको ये डिमोटिवेट नहीं करेगा कि अगर उनके लॉयर्स ही आगे जाके जुडिशरी में अप्लाई करते हैं, राइट? तो वो फिर जुडिशल एग्जाम्स के लिए वुडंट दे बी डिमोटिवेटेड कि अब ये अमेंडमेंट आ गई है, इससे फिर आगे भी ये काम हो सकता है? वुडंट दे बी डिमोटिवेटेड बिकॉज ऑफ दिस अमेंडमेंट? I don't think so. Not at all. क्योंकि I'll tell you why. जब आपने जो तस्वीर आप मेरे लिए पेंट कर रहे हो कि जी एक यंग लॉयर है, ठीक है, 2 साल का उसका टाइम हो गया, उसने जुडिशरी के पेपर दे दिए और अब वो बनना चाह रहा है. तो आप जब जुडिशियल एग्जाम्स दे के जब आप जज बनना चाहते हैं, तो यू आर ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम द लो लेवल. सिविल जज से लेट्स सपोज आप स्टार्ट कर रहे हो. आपको तो ये अमेंडमेंट्स आके फॉर यू टू बी इवन कंसिडर्ड कि जी ये एज अ जज, लेट्स से अगर मैं एक छोटा मोटा जज हूं, सिविल कोर्ट्स का जज हूं, सो फॉर यू टू बी इवन कंसिडर्ड बाय द अमेंडमेंट का जो एम्बिट है, आई वुड हैव टू बी एट लीस्ट अ हाई कोर्ट जज. वो बनते बनते मुझे मुद्दत निकल जाएगी. 10 साल लग जाएंगे, 15 साल लग सकते हैं मुझे. फिर कहीं जाके फिर हाई कोर्ट की मेरी प्रैक्टिस शुरू होगी एज अ जज. करते 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 फिर कहीं जाके मेरी सुप्रीम कोर्ट की बारी आएगी. अब अगर उस दौरान एक और अमेंडमेंट आ गई तो फिर तो यंग लॉयर्स के लिए कोई नो डीमोटिवेटिंग फैक्टर तो बिल्कुल भी नहीं है. बिल्कुल भी नहीं है. बिकॉज वो उनके लिए इट्स बिजनेस एज यूजुअल. उससे कोई उनको फर्क नहीं पड़ रहा. ना ही उनकी प्रैक्टिस को, ना ही अगर वो कल को जुडिशरी में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका स्टार्ट ही इतने वो निचले लेवल से होना है जुडिशरी का. सो ये है. Thank you for your valuable insights on that, Sir Saad. We'll be taking a 5 minutes break and we will continue after. So welcome back everyone from 5 minutes break. Let's begin. Yunus? Okay. Sir, I'm so glad you brought that up. It was a crucial aspect of this topic.
Now, what are the most significant hurdles young lawyers face when transitioning from law school to actual legal practice? And how can new lawyers effectively develop their litigation, negotiation, and client management skills in their careers? Excellent question. Excellent question. देखो यूनस, जो यंग लॉयर्स, जो आज एक बंदा वकील बनता है ना, या जो बनने का सोचेगा, उस बेचारे को फॉर द फर्स्ट स्टेप से ही वो थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूज्ड होएगा, बिकॉज ही एंड आई फेस्ड सिमिलर कंफ्यूजन, उसका यही है कि यार पहले तो कि लॉ करना कौन सा है। अब ये एक बड़ा अजीब सा सवाल है कि शुड आई डू, जिसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं लोकल सिस्टम, लोकल करें या एक्सटर्नल करें। वो जी लंदन वाला, इस तरह से वो बात की जाती है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो वो बेचारा इसी चीज में ही उसके 2-3 महीने, एट टाइम्स 2 साल लग जाते हैं ए लेवल्स पूरे के, अगर हम एक ए लेवल स्टूडेंट की बात कर रहे हो। आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स के यार, अगर तो आप यू सी और लॉन्ग टर्म फ्यूचर इन पाकिस्तान, तो यार आप लोकल सिस्टम करें, ठीक है ना। बिकॉज हमारा द लॉ दैट, आपने रहना इस मुल्क में, अगर आपको इस मुल्क के लॉ का नहीं पता, तो यार आप एज ए लॉयर कैसे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। मसला ये आता है यंग लॉयर्स को, दैट आई सेड कि जी शुरू से ही वो बेचारे कंफ्यूज्ड होते हैं। वो इसलिए है कि पहले के जी सिस्टम कौन सा करना है। एंड लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट बोथ ऑफ देम। अब नाउ फॉर समबडी जो के देखेगा कि यार यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का एलएलबी करके 3 साल मेरे लग रहे हैं, तो वो बंदा ऑटोमेटिकली उस तरफ अट्रैक्ट होता है कि यार मेरे 2 साल बच जाएंगे, लोकल एलएलबी करूंगा तो 5 साल लगेंगे, तो हाँ यार मैं इतनी एज में वकील बन जाऊंगा। इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट। आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का लॉ कर लें, यू कुड गेट द हाईएस्ट मार्क्स इन द वर्ल्ड, डजंट मैटर। आपने जब प्रैक्टिस पाकिस्तान में करनी है, ना आपको पता है कानून शहादत क्या है, ना आपको पता है सीपीसी क्या है, ना आपको पता है सीआरपीसी क्या है, ना आपको पता है पीपीसी क्या है आपको। अच्छा, ये पॉडकास्ट है किस चीज के लिए? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हम कर रहे हैं ना। आपको पता ही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता क्या है। सर ह्यूमन राइट्स, जस्टिस, नहीं भाई नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन की किताब खोल के देखें, पढ़ें उसको, एजुकेट योरसेल्फ। आपको पता नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स किस में लिखे हुए हैं, आपको आर्टिकल 199 का नहीं पता। मिसाल दे रहा हूं। अब जो बंदा लंदन का एलएलबी, जिसको हम कहते हैं द एक्सटर्नल सिस्टम, तो पहला चैलेंज तो उसका यही है कि जी अब वो अपने आप को दोबारा से, जब उसको नौकरी, अगर इफ ही इज फॉर्चुनेट इनफ टू फाइंड वन, अगर वो नौकरी शुरू कर देता है, तो उसके एम्प्लॉयर्स उसको यही कहेंगे ना कि बच्चे हम तो लोकल लॉ की यहाँ पे सारी उस पर प्रैक्टिस करते हैं, आपको तो उसका नहीं पता। सो सबसे पहले तो आपने वो करना है। फिर रिगार्डलेस ऑफ वट एवर सिस्टम यू कम फ्रॉम, चाहे वो लोकल सिस्टम हो, चाहे वो एक्सटर्नल सिस्टम हो, आपने पंजाब बार काउंसिल के एग्जाम्स भी देने हैं, आपने उनकी तैयारी भी करनी है। वो एग्जाम्स नहीं दोगे तो लाइसेंस नहीं मिलेगा, लाइसेंस नहीं मिलेगा तो फिर बेटा प्रैक्टिस कैसे करेंगे, क्लाइंट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे कोर्ट में, लाइसेंस के बगैर तो नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये चल अच्छा, अब आप ये देखें कि लेट्स टेक इट वन स्टेप फर्दर। यंग लॉयर्स को देखो, एवरीबडी गेट्स अप फॉर वर्क। नौकरी आप क्यों करते हो? कमाई के लिए, ठीक है ना। वरना आई मीन, अगर उसमें ये फाइनेंस को दुनिया में सुबह उठ के तो नौकरियों पे जाता, ठीक है ना। शौक से मेरे कोई भी नौकरी आई डोंट थिंक कोई शौक से करता है, बट खैर, एनीवे यार देखो, यंग लॉयर्स में बात पहले भी बहुत दफा हुई हुई है ऑन वेरियस एवेन्यूज। यंग लॉयर्स के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त है, दे आर नॉट बीइंग कॉम्पनसेटेड फाइनेंशियली। नहीं उनको मिल रहे बेचारों को पैसे। मैं आपको अपनी अगर कहानी सुनाता हूं तो वो यही है। फॉर वन होल ईयर बाय द वे, आई वॉज नॉट पेड एनीथिंग फ्रॉम माई ऑफिस वेर आई स्टार्टेड वर्क। लेकिन it didn't affect me. I'll tell you why. Because I had supportive parents, and
and I found a very good teacher. Balki no, let me rephrase that. I found very good teachers and mentors in the office that I worked in. और मैं आज तक उनसे लीगल काउंसिल लेता हूं. देयर आर टन्स ऑफ थिंग्स जो मुझे भी नहीं पता, एंड आई स्टिल, मैं उनसे आज भी बात करता हूं. एंड दे वर वेरी गुड. तो मेरे लिए ये ट्रेड ऑफ था. एंड ऑल्सो बिकॉज आई न्यू कि 1 साल बाद मैं बाहर पढ़ने जा रहा हूं, तो यार 1 ही साल है ना, कोई बात नहीं. बट नॉट एवरीबडी हैज दैट प्रिविलेज. मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट हैव दैट प्रिविलेज. तो आपका ये भी एक चैलेंज है, बीइंग अ यंग लॉयर. आपका ये भी चैलेंज है कि आप एक ऐसी जगह पे जाएं जहां पे देखें आपने 3-4 बॉक्सेस को टिक करना है. अब आप ऑलरेडी अगर एक्सटर्नल सिस्टम करके आ रहे हैं तो आप ऑलरेडी डाउन द पैकिंग ऑर्डर हैं, क्योंकि आपको लोकल लॉ का पता ही कुछ नहीं है. हाँ, जो पंजाब यूनिवर्सिटी से करता है, जो लोकल लॉ करता है, उसको पता है पिटिशन कैसे ड्राफ्ट होनी है. उसको पता है कि जी कोर्ट्स का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि यूके के कोर्ट्स का स्ट्रक्चर इज डिफरेंट. सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट ऑफ अपील, हाई कोर्ट, उसके डिविजन्स हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो पहला तो चैलेंज आपका ये हो जाता है. चलें, आप उसको ओवरकम कर लेते हैं. द सेकंड चैलेंज इज फाइंडिंग एन ऑफिस दैट सूट्स योर नीड्स. कि चलो देखो, लाखों करोड़ों की नौकरी तो पहले दिन आपको नहीं मिलनी. रियलिस्टिक अप्रोच लेके जाएं, लेकिन ऑब्वियसली यू वांट सम सॉर्ट ऑफ रिकग्निशन फॉर द वर्क दैट यू आर पुटिंग इन. तो आपको थोड़ा बहुत तो आप एक्सपेक्ट करोगे ना कि आपको पैसे मिलेंगे. फाइंड एन ऑफिस जो आपके इंटरेस्ट के साथ अलाइन करता है. एंड देन नंबर 3, आप पंजाब बार काउंसिल के भी पेपर पास कर लोगे, आप प्रैक्टिस भी कर लोगे. बट आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज फॉर यंग लॉयर्स इज फाइंडिंग द राइट मेंटोर इन द लीगल फील्ड. आई लक्ड आउट, मुझे बहुत अच्छे लोग मिल गए थे. मेरे यूनिवर्सिटी के टीचर्स भी अच्छे थे जिनके साथ फिर मैंने काम किया. मुझे वो भी बहुत अच्छे, जिनको हम कहते हैं मंजे हुए लोग थे, उनको आता था लॉ और उन्होंने मुझे सिखाया. सो बट आई अंडरस्टैंड इन टुडेज इकोनॉमी, ये यू नो यू विल एक्सपेक्ट टू बी कॉम्पनसेटेड यार. तो यंग लॉयर्स के लिए पैसे ह्यूज चैलेंज, कि कमाई कैसे करनी है. सर वो अपने क्लाइंट्स भी तो ले सकते हैं, श्योर. लॉ आएगा तो अपने क्लाइंट्स लेंगे ना. कुछ करेंगे, सीखेंगे कि कोर्ट कैसे जाते हैं, केस फाइल कैसे होता है, पिटिशन कैसे तैयार होती है, प्रीलिमिनरी आर्ग्यूमेंट्स कैसे होती हैं, फिर यू टेक इट अ स्टेप फर्दर तो क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होती है, एविडेंसेस किस तरह से कोर्ट में लाए जाते हैं, एफआईआर कैसे कटती है. इट्स अ होल प्रोसेस. बेल कैसे करवानी है, स्टे ऑर्डर कैसे लेना है, ये आपको एक अच्छा मेंटोर ही सिखा सकता है. वंस यू गेट दैट फाउंडेशन राइट, यू गेट योर लाइसेंस. हाँ, फिर सो मनी एंड फाइंडिंग द राइट चेंबर या फर्म, these are the two main challenges for young lawyers in my opinion. Thank you so much for your valuable insights. That is something I can relate to as well, since I come from a family of lawyers and this is discussed a lot in my house. So that moving on to our next question, that is also something you discussed previously. It's a great question. And since you come from a family of lawyers, you will 100% agree with me. Fixed working hours nahi hai bhai. That is something that I had to come to terms with. There are no working hours, but हर वक्त working hour है. So challenge ये इस तरह से, ये मेरे लिए ये था challenge कि यार आपने अपने दिन को as productive as possible कैसे बनाना है. You pick up your briefcase, you're about to go home, client आ गया, you can't say no to the client. Client से तो आपने बात करनी है ना. You have to be willing to put in the work यार, उसके बगैर नहीं होएगा. The challenges that I faced are the ones जो आपने अभी कहा. जिस तरह से मैं यूनिस से अभी बात कर रहा था, मुझे पिटिशन नहीं आती थी ड्राफ्ट करनी. हाँ, मैं स्टूडेंट बड़ा जबरदस्त था यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एलएलबी का, एंड आई थॉट दैट द वर्ल्ड वाज माय क्या कहना चाहिए, ऑयस्टर. लेकिन नो, आई हैड नो आइडिया हाउ टू ड्राफ्ट अ पिटिशन. आई barely had any idea how to draft a contract. मुझे ये फंडामेंटल राइट्स नहीं पता थे.
कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हमारा कोर्ट स्ट्रक्चर क्या है, केस कैसे मैं फाइल करता हूं, मैंने जाके जज के सामने पेश कैसे होना है, प्लेंटिफ कौन है, रिस्पोंडेंट कौन है, एपेलेंट कौन है, कोर्ट में खड़े किधर होना है, पंक्चुअलिटी, इस वक्त पहुंचना है, ठीक है। और लोअर कोर्ट से आपने स्टार्ट करना है। हाउ डू यू फिगर आउट कि यार एक क्लाइंट आया है, उसका जो ये मसला है, उसका हल निकालने के लिए आपने किस स्टैचूट, स्टैचूट इज द लॉ, आपने किस लॉ को रेफर करना है। भाई फैमिली लॉ है, कंपनी लॉ है, सीपीसी है, जिस ये जो हमारा सिविल लॉ है, प्रॉपर्टी का इशू है, केस लॉ कैसे ढूंढना है अपने सीनियर्स के लिए, लीगल रिसर्च कैसे करनी है। उन्होंने कहा है कि बेटा ये एक प्रोपोजिशन है, इसके ऊपर हमें साइटेशंस ला के दो। अब हमारे पास तो अब आजकल खास तौर पे क्या जी करके देख लेते हैं गूगल पे, ऐसे नहीं होता। किताब से लीगल रिसर्च कैसे करनी है, कौन सी साइटेशन को यूं करके पिक करना है और अपने सीनियर्स को जाके दिखाना है कि सर आपके लिए मैं लीगल रिसर्च करके लाया हूं। बोलना कैसे है, क्लाइंट को कैसे डील करना है, ये भी एक आर्ट है। इट्स वन ऑफ द यू नो बिगर क्या कहना चाहिए एस्पेक्ट्स ऑफ बीइंग अ लॉयर, कि क्लाइंट से बात कैसे करनी है, उसके इंस्ट्रक्शंस कैसे लेने हैं। हम अपने क्लाइंट्स के इंस्ट्रक्शंस के ताबे हैं, हम लोग बीइंग लॉयर्स, उससे इंस्ट्रक्शन कैसे लेनी है। एंड अगेन आई फेस दिस मनी चैलेंज बिकॉज इट वाज वेरी weird टू मी कि यार आई wasn't being paid. सो ये चैलेंजेस मुझे आए थे, स्पेशली बिकॉज आई डिड द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वाला प्रोग्राम। आई हैड नो आइडिया अबाउट लोकल लॉ, मुझे नहीं पता था कानून शहादत क्या होता है। आई हैड नो आइडिया, सो दीज आर द। हाँ, उर्दू, उर्दू में लिखी हुई पिटिशंस आपको, यू नीड टू सिट डाउन एंड रीड देम। हमारा सबसे बड़ा ये ड्रॉबैक है हम सबका, और ये हम सबकी फेलेंगे, हम लोग अपनी जबान को ओन नहीं करते। ओए यार उर्दू है देखी जाएगी, नहीं भाई, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड इट। उर्दू में एफआईआर लिखी जाती है, कैसे पढ़ोगे, कैसे समझोगे, दावे उर्दू में होते हैं, कैसे पढ़ोगे। Field, go with realistic expectations. So these are the challenges I faced. Coming to my second question, that's actually related. Since you studied law from the University of London, why did you come back to Pakistan to practice? Why not just stay there and practice there? ओ यार, इसका एक बड़ा एक सीधा सा जवाब है कि जब मैं इंग्लैंड अपना पोस्ट ग्रेड करने गया था, तब वो लोग पीएसडब्ल्यूज दे नहीं रहे थे। आई डेंट इवन अटेंड माई ओन ग्रेजुएशन सेरेमनी। I didn't know that. इट्स जस्ट हाउ इट इज यार। तब वो लोग, इट वाज अ डिफरेंट टाइम यार। आई वेंट इन 2012। आई वेंट फॉर माई लीगल प्रैक्टिस कोर्स, एलपीसी के लिए मैं गया, एंड ऑल्सो बिकॉज इट्स एक्सेप्शनली हार्ड टू सिक्योर ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स इन द यूके। अब तो आई थिंक थोड़ी सी रेल पेल हो गई है, लेकिन इट्स स्टिल वेरी हार्ड। और आई एक्चुअली गॉट 2 interviews, आई गॉट 2 calls. One said ke we're not in the mood to sponsor anybody, so as good as you are, we're sorry. It was one of the politest sorries I ever got. और एक और कॉल आई थी, बट आई नेवर मेड इट टू द कॉल बिकॉज मेरी फ्लाइट आ गई थी एंड आई हैड टू कम बैक। सो बट it worked out, alhamdulillah. I landed on my feet. I get to do the thing that I love, that is to practice transactional law, and I get to teach people like Shayan, Shamal, so your age group. um and I've always wanted to be a teacher as well, so it worked out.
those are very unique life experiences, Sarsad. All right, let's move on to the next question. So, given the like very recent advancement in AI technology, I do believe that you are quite aware with what effect that Yep. it has on the legal world. So my question is based on like how or like what skills or knowledge do we need to possess to develop or identify, challenge manipulated evidence in legal proceedings effectively? Hmm. You need, सबसे पहले तो जो आप लोगों को चीज चाहिए is the ability to recognize के evidence, क्योंकि आपने you know pointed out evidence, कि आपको ये evidence आ कहां से रही है. Get to the source. Number one, you need, और ये चीज कैसे आती है, ये experience के साथ आती है. Pick out the root of the evidence का जो आपका source है, कहां से आ रही है भाई evidence और information. दोनों के लिए मैं यही कहूंगा. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि यू मेंशन्ड कि सर इसका हमारी लीगल प्रैक्टिस के ऊपर क्या इम्पैक्ट है. अभी तक तो नहीं है कोई. ठीक है, बिकॉज अगेन यू नो टूल्स लाइक चैट जीपीटी डेवलपमेंट में तो आई एम नॉट श्योर ये कब से हैं, लेकिन इनका रेलेवेंस अब आना शुरू हुआ है. लेकिन अगर इनका है एआई का जिस तरह से एक बड़ा रैम्पेंट ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो देन एट द सेम टाइम अब्दुल रहमान, एआई फेक एआई डिटेक्टर्स भी उसी तरह से ही इसके साथ साथ ऊपर जा रहे हैं. सो मे बी दिस इज एन एडिशनल स्किल ये वाली दैट वी नीड टू मास्टर. मैंने कहा ना कि आप उसको पिक करने की कोशिश करो. सोर्स क्या है इंफॉर्मेशन का? मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं. हाउ डू यू नो इफ इट्स यू नो इफ इट्स इवन रियल? सोर्स देखें. तो मे बी दिस इज अ टेक्निक दैट वी ऑल नीड टू मास्टर, बिकॉज ये दिस कैन वेरी इजिली ब्लीड इन टू a very dangerous territory. However, I will also say that recently I was reading this article and I believe I shared it with my students as well. और वो ये था कि there was an American university जहां पे दो बच्चों ने solely relying on AI, solely, कोई किताब नहीं पढ़ी, कोई रिसर्च नहीं किया, कुछ नहीं किया, solely relying on AI, उन लोगों ने अपने फाइनल एग्जाम्स दिए थे. And the university ran them through the AI detector and they got picked up. And they flunked. Obviously, got banned, jo bhi degrees aaya, everything and anything associated with this sort of activity. तो obviously, like I said, कि उस यूनिवर्सिटी ने भी तो फिर अपने आप को इस स्किल में एजुकेट किया ना, कि आपने एआई से क्रेडिबल इंफॉर्मेशन लेनी है और कौन सी इंफॉर्मेशन है एआई से जो आपको क्रेडिबल नहीं मिल रही. और बल्कि लॉ इज वन ऑफ द फील्ड्स जहां पे अभी तक एआई का शायद चाहते हुए भी अभी वो इंपैक्ट नहीं आया. देयर हैव बीन अ फ्यू रिपोर्टेड केसेस एज वेल के आर्ग्यूमेंट्स में, रिसर्च पेपर्स में, आर्टिकल्स में एआई से मदद मांगी गई थी कि आप हमें कोई केस लॉ साइट करके दें, और वो साइटेशंस या तो उसको आती नहीं थी या वो गलत थी. सो आई एम नॉट सेइंग कि इट्स अ कंप्लीट बस्ट. एआई का बहुत ज्यादा एक इम्पैक्ट आ रहा है एंड वी कैन ओनली होप कि इट्स फॉर द बेटर. लेकिन अभी फॉर इट टू बी इवन कंसिडर्ड अ थ्रेट, सो टू स्पीक, टू द लीगल हमारे प्रैक्टिस और इन सारी चीजों को, नॉट येट. सो यू नीड टू बी एबल टू और ये चीज फिर वही है, आपको प्रैक्टिस और एक अच्छे मेंटोर से ही सीखने को मिलती है. अब्दुल रहमान, फेक न्यूज को, फेक एविडेंस को हाउ डू यू आइडेंटिफाई, कैसे पकड़ते हो उसको? एंड दैट कम्स थ्रू एक्सपीरियंस. That was a very good point, Sir Saad. I totally agree with you.
Saad, as you mentioned that dealing with clients is a skill. So what pointers would you give our viewers or your students on how to deal with clients? As you know, in Pakistan, many clients just come for the information and फिर वो बाद में आते नहीं हैं, and then they get their case ruined through some lawyer who didn't know the stuff, and then they come And then again they'll come to have back the to you. case fixed. Yeah, Yes. and then they'll So how come do back we to deal you. with clients like that? You take it in your stride, yaar. You take it in your stride. You cannot, grab the client by the throat and say, I told you so. You see, you ingrained, इस तरह की बातें नहीं करनी. No. Keep your ego in check. आपको अल्लाह ने अगर वकील बना ही दिया है ना, तो यार वो इसीलिए बनाया है कि ताकि आप लोगों को गाइड करें उनके लीगल मसाइल पे. एक चीज मैं जरूर कहूंगा, टू ऑल एस्पायरिंग लॉयर्स, आई थिंक 3 तो मेरे सामने ही बैठे हैं. आई एम नॉट श्योर अबाउट यूनस, लेकिन क्या कहते हैं, शयान, अब्दुल रहमान और आप, चूंकि यू कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ लॉयर्स, yeah, deal with clients as you would like to be dealt with yourself. Yeah, I mean, be nice to them, listen to them, don't pass judgment. People have very real problems. यार हम लोग बड़े privileged backgrounds के हम लोग हैं. अल्लाह का शुक्र करना चाहिए. So don't act, as I don't know क्या इसको अब मैं कहूं कि जी I know, आप चुप करें, मैं आपको बताता हूं. Don't be like that, यार. Listen to their problem. Let them get it out. एक दफा take it in. Treat them as human beings, यार. I mean, they're there for help, यार. कोई वहां पे शुगल मेले के लिए तो आता नहीं है. हाँ, कुछ हैं जो विंडो शॉप करते हैं, लेकिन वो घूम फिर के फिर आप ही के पास आएंगे कि वो आप ठीक कह रही थी. आपने भी अगर अपनी रिसर्च की होगी तो आप करेंगी ना उनको सही तरह से गाइड, वरना आप यही कहोगे कि मुझे नहीं पता, वो साथ वाली बिल्डिंग में एक वकील साहब बैठे हैं, आप उनके पास चली जाएं. वो तो फिर ऐसे होगा. Thank you so much for the So yeah. insights, Saad, and for your valuable time. We have learned a lot from this session, and I believe our viewers hold the same opinion. We would love to have you back on Behind the Mic in another episode in the near future. This is your host for tonight, Hamal Faisal, signing off. Thank you. Thank you. Thank you for having me.